Hello student, we are learning class 12 commerce subject account. In account our topic is running admission of a partner. In this topic today we will solve question number 37. In question number 37 has given us this information. X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. They prepared their balance sheet. Okay, here is given balance sheet. In liability side, creditors and capital given us. In asset side, cash in hand, bills receivable, debtors, stock, furniture and buildings given. Okay, now here is given additional information. They admitted Z into partnership on the following terms. First, here is given, he will pay 5,500 as capital for 1/5 share of profit. Okay, now Z is giving 5,500 as a capital. Z shares of goodwill is evaluated at 2,000 rupees. It means here Z is not giving goodwill. Okay, here is valued 2,000 rupees as Z goodwill. Okay, stock and furniture will be depreciated by 10% and provision on debtors will made at the rate 5%. Okay, we have to deduct here depreciation 10% on stock and furniture. Okay, here is given stock and furniture value. Okay, then we have to make provision of debtors, means provision for doubtful debts 5% on debtors. Here is given value of debtors 8,000 rupees. We will find out 5% on 8,000 rupees. It means debtors amount. Okay, next information is given here. Building will be appreciated by 20%, means we have to increase here value of building by 20%. Okay, the capital account of X and Y readjusted according to the new ratio in the firm. Okay, and in this question we have to make necessary accounts and balance sheet of new firm. Also we have to find out the profit sharing ratio of partner. Okay, in this question we have to make necessary accounts and balance sheet also, and we have to find out new profit sharing ratio. So student, first of all we will find out new profit sharing ratio in this question. So first of all we will write calculation of new ratio. Okay, now here is given X and Y's old ratio 3:1 and Z's ratio is coming for 1/5 part. Okay, so we will find out remaining ratio. Remaining ratio, how we will find out? We will less 1/5 part in 1. Okay, so here will come 4/5. Remaining ratio, remaining part will be 4/5. So remaining part old partners will get in their old ratio. Okay, so here will come X new ratio 4/5 into 3/4 in their old ratio. X old ratio is 3/4. So here will come you can cut here
4/4, so 3/5x new ratio, and y's new ratio will be 4/5 into 1/4. So here will come 1/5. So x, y and z new ratio will be 3/5, 1/5 and 1/5. So new ratio will be 3:1:1, x, y and z's new ratio. Okay, x, y and z's new ratio is 3:1:1. Okay student, next we will make in this question a revaluation account. Okay, now student, we are making revaluation account. Okay, now here is given for revaluation account information. Stock and furniture will be depreciated by 10%. So student, we have to find out here depreciation on stock. Okay, here is given stock value 10,000 rupees. So we will find out 10% of on 10%, 10% on 10,000. So here will come depreciation 1,000 rupees. Then depreciation on stock and furniture. Okay, depreciation on furniture. Here is given furniture value 1,000 means 10% of 1,100. मैंने इसे डेबिट साइड में क्यों लिखा? ठीक, क्योंकि जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं हम. ठीक है, और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन डेबिट साइड. नेक्स्ट, building will be appreciated by 20%. Okay, here is increasing value of building, so we will write in credit side by building account is given buildings value 12,500. We will find out 20% of 12,500. So 2,500 रुपीज़. ओके, यहाँ पर इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. ठीक, सो नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. सो हियर इज कमिंग प्रॉफिट. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है मीन्स प्रॉफिट हो रहा है हमें 2,500 रुपीज़ है, और कम हो रहा है सिर्फ 11 मीन्स 1,100 रुपीज़. सो हियर विल कम टू profit on revaluation, and we will transfer this profit in partners capital account. So here we will write to profit on revaluation transferred to partners capital account. Only we will transfer this profit in old partners capital account in their old ratio. Okay, so here is coming profit 2,500 minus
1100 rupees. So here will come 1400 rupees, and we will distribute this profit in their old ratio. Okay, so student, here we didn't write provision amount, so here we will write first of all provision on debtors. Okay, here we have to write provision on debtors. Here is given debtors value 8,000 rupees. So we have to find out 5% on 8,000. Here will come 400 rupees. So our profit will be 1,000. Okay, we didn't see here debtors means provision on debtors. Okay, 5%. So we have to write here provision on debtors 8,000. 5% of 8,000 means 400 rupees. यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, प्रोविजन ऑन डेप्टर्स, ठीक है, सारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. सो विल राइट इन डेबिट साइड. अब हमारा प्रॉफिट हो गया 2500 में से ये सारी वैल्यू माइनस की तो 1000 रुपीज़. सो हियर वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1000 रुपीज़ इन old partners capital account in their old ratio. So old partners are X and Y, and we will distribute 1000 in their old ratio. So 7,500 rupees and 1/4 means 750 rupees and 250 rupees. Okay, so प्रॉफिट मिल गया इन दोनों को 750 और 250 रुपीज़. टोटल कर देंगे हम यहाँ पर 2,500 रुपीज़. ठीक है, जो 1000 रुपीज़ जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 750 रुपीज़ और 250 रुपीज़ आ गया 1000 का. ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1 में, तो 3/4 और 1/4 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Okay student, it is our partners capital account. X, Y, Z's we will make in debit side particular column and amount column of X, Y, Z, and in credit side particular and X, Y, Z's amount column also. In credit side we will write first of all by balance BD. जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी जो ओल्ड कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो कैपिटल हम लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड में. ठीक है, 17,000 और 5,500 रुपीज़. ठीक है, इनके ओल्ड कैपिटल यहाँ पर दी हुई है बैलेंस शीट में, वो मैंने लिखी 17,000 एंड 5,500 रुपीज़. इसके अलावा जो जेड न्यू पार्टनर आ रहा है वो एज अ कैपिटल इन केस ला रहा है कितने पैसे, ही विल पे 5,500 रुपीज़. ओके, सो विल राइट इन Z's amount column. Then we will write here revaluation profit which we have distributed in revaluation account 750 rupees and 250 rupees. ओके, यहाँ पर मैंने बैलेंस लिखा दोनों पार्टनर्स का, दोनों का ही ओल्ड बैलेंस है कैपिटल का. इसके अलावा जेड केस ला रहा है एज ए कैपिटल के रूप में.
ठीक है, 5500 रुपीज़। रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाया था इसका पहला, ठीक है, उसमें 750 रुपीज़ और 250 रुपीज़ एक्स और वाई को मिला था। इसके अलावा नाउ वी विल राइट हियर गुडविल। जो यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया है 2000 रुपीज़। किसकी गुडविल? जेड्स गुडविल ऑफ शेयर, ठीक है, 2000 रुपीज़। जेड गुडविल ला नहीं रहा है, अगर लेकर आता तो हम इसकी एंट्री करते केस अकाउंट एड टू गुडविल अकाउंट और फिर उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं ला रहा है तो एंट्री करेंगे हम जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। इस एंट्री के द्वारा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस गुडविल को मीन्स 2000 रुपीज़ को एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। जो 2000 रुपीज़ है इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 में, तो 1500 रुपीज़ एक्स का हो गया और 1 से हो गया तो 500 रुपीज़, मीन्स एक्स को इसका पार्ट गुडविल का पार्ट मिल जाएगा 1500 और वाई को 500 रुपीज़, ठीक। और डेबिट साइड में हो जाएगा ये एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को इसने दिया जेड ने 1500 रुपीज़ टू वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई को दिया 500 रुपीज़। स्टूडेंट यहाँ पर हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। इसके बाद में नाउ स्टूडेंट वी विल फाइंड आउट बैलेंस, ओके। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर बैलेंस आया हमारा, एक्स के अमाउंट के कॉलम का टोटल किया, टोटल हुआ 19,250 रुपीज़। यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, मीन्स क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 19,250 रुपीज़ एक्स का बैलेंस। सेम एज इट इज़ वाई के लिए भी यही करेंगे हम। यहाँ पर जो टोटल हुआ है वाई के कॉलम का 6,250 रुपीज़, डायरेक्टली 6,250 रुपीज़ इसका बैलेंस हो गया। जेड के लिए 5,500 रुपीज़ में से माइनस करना है 2,000 रुपीज़, तो ये हो गया 3,500 रुपीज़। मतलब ये हुआ कि जेड यहाँ पर गुडविल नहीं ला रहा है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है। कितना? 5,500 रुपीज़। अब 5,500 रुपीज़ कैपिटल ला रहा है तो जो गुडविल का वैल्यूएशन किया उसके पार्ट, ठीक है, उसका पार्ट निकाला हमने गुडविल का। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इवैल्यूएटेड एट 2,000 रुपीज़, ठीक है। अब 2,000 रुपीज़ नहीं ला रहा है, फिर भी उसके कैपिटल अकाउंट में से उसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे हम 5,500 रुपीज़ में से 1,500 रुपीज़ एक्स को दे दिया इसने और 500 रुपये वाई को दे दिया, तो अब इसकी कैपिटल कितनी बची? 3,500 रुपीज़। अब न्यू कैपिटल हो गई तीनों पार्टनर्स की ये, ठीक है। हमने यहाँ बैलेंस बता दिया न्यू कैपिटल का 19,250 रुपीज़, 6,250 और 3,500 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, इस बैलेंस को हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मीन्स कैपिटल के रूप में शो करना है, ओके। ये इनकी कैपिटल है, न्यू कैपिटल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मेक बैलेंस शीट। Now student, we are making balance sheet. Okay, in balance sheet given us case in hand. कितना है? 7,500 रुपीज़। अब जो Z आ रहा है वो 5,500 रुपीज़ लेकर भी आ रहा है, मीन्स केस आ रहा है हमारे पास, तो अब केस इंक्रीज हो गया कितने से? 5,500 रुपीज़। तो सो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 7,500 में 5,500 रुपीज़, ये हो जाएगा 13,000 रुपीज़, ठीक। इसके बाद में बिल्स रिसीवल, यू विल राइट बिल्स रिसीवल।
बिल्स रिसीवेबल एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट है डेप्टर्स। डेप्टर्स 8,000 रुपीज़ है, इसमें से प्रोविज़न किया था हमने 5%, ठीक है, 400 रुपीज़ लेस कर देंगे हम प्रोविज़न के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,600 रुपीज़। नेक्स्ट हियर इज गिवन स्टॉक। स्टॉक है 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 में से डेप्रिसिएशन लगा 1,000 10%, ठीक है, तो अब स्टॉक हो गया 9,000 रुपीज़ का। फर्नीचर है 1,000 रुपीज़ से, ठीक है, इस पर डेप्रिसिएशन लगा 10% 100 रुपीज़, तो हो गया फर्नीचर अब 900 रुपीज़ का। उसके बाद में बिल्डिंग 12,500 रुपीज़, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई 2,500 रुपीज़ से, ठीक है, तो ये हो गया 15,000 रुपीज़, ठीक है। हमने नई वैल्यू बता दी असेट्स की। क्या हो गया अब कैश इन हैंड कितना हो गया 13,000, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं हुआ है। डेप्टर्स पे प्रोविज़न लगा, प्रोविज़न की हमने 5% 400 रुपीज़, तो डेप्टर्स हो गया 7,600 रुपीज़। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 9,000 हो गया। फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई 900 रुपीज़ हो गए। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 2,500 रुपीज़ से 20%, सो वी हैव रिटर्न 15,000 रुपीज़ बिल्डिंग वैल्यू। नाउ वी कम इन क्रेडिट साइड। इन क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो डायरेक्टली लिख देंगे हम एज इट इज़ 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट वी विल राइट कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, सभी की लिखना है यहाँ पर कैपिटल। एक्स की कैपिटल आई थी हमारी 19,250 और 19,250 एंड वाइस कैपिटल थी 6,250 एंड जेड 3,500। जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD करके लिखा था वही लिखना है हमें यहाँ पर, ठीक। टोटल कर देंगे इसका हम, स्टूडेंट हियर वी विल राइट टोटल। यहाँ पर कैपिटल टोटल कैपिटल हो जाएगी 29,000 रुपीज़ और क्रेडिटर है 18,000, टोटल हो गया 47,000 रुपीज़। अब जो 47,000 रुपीज़ असेट साइड का भी टोटल 47 ही आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ 47,000 हो गया असेट्स का टोटल, दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अगर ये अमाउंट दोनों साइड की टोटल इक्वल आती है तो हमारी बैलेंस शीट सही बनाई हमने। अगर बैलेंस शीट सही है इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही रहा हमारा, और इसके पहले हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी सही था, ठीक है। इसे चेक करने का, पूरे क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है कि यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का, लायबिलिटीज़ और असेट्स। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट में तीनों बना ली, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 37।